صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین جو ہماری چینل کو پہلے سے دیکھ رہے، ہم ان سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آپ اگر پہلی بار چینل میں آئیں تو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے۔ گزارش رہے گی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دے تاکہ ہمارا دیا ہوا عملیات آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رہے، خوشحال رہے۔ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، کسی دشمن سے کسی کو واسطہ نہ پڑے اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کا عمل دشمن کے حوالے سے ہے۔ یہاں اسکرین شاٹ لے لے، آگے میں یہ نہیں دکھاؤں گا، نقش دکھاؤں گا، خالی یہ نقش ہے۔ دشمن کے حوالے سے ہیں، فرمائش کے حساب سے میں دشمن کے لیے، دشمن کی بربادی، دشمن سے برابر حساب لینا اور دشمن کو ہلاک و برباد کرنا، دشمن کو ذلیل و خوار کرنا جیسا چاہے۔ چاہے دشمن جادوگر ہے تو دشمن کی کیا کرایا جتنا بھی ہے وہ سب اسی پر پلٹنا، جادو پلٹنا۔ اور دشمن اگر بدماش ہے تو اس کی بدماشی تو بہت دور ہے، اس کی جان کو آفت ہو جائے ایسا معاملہ۔ یوٹیوب کی معاملہ ہے، سارے کچھ نہیں کہہ سکتے، میں جیسے بتاؤں گا ویسے آپ کو سارے کچھ معلوم پڑ جائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی پوشیدہ رکھیں گے، یوٹیوب کا پروٹوکول کو بھی خیال رکھنے پڑیں گے اور آپ کو بتایا بھی جائے، آپ کو سمجھ میں بھی آئے۔ دشمن کی معاملہ ہے، پیچیدہ معاملہ ہے، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب عمل کو کر پائیں گے، پورا نہیں دیکھے گا تو وہ عمل نہیں کر پائے گا۔ اور یہ وہی بندہ دیکھیں جو دشمن سے گھیرا ہوا ہو، موذی دشمن سے پریشان ہے، دکھی ہے، کسی بھی چیز سے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہاں آئے، نوری عمل میں آئے اور قرآن حکیم کی عمل سے ہی آپ کو فائدہ ملے گا، مکمل فائدہ ملے گا، نجات ملے گا۔ یہی ہے سچا راستہ، صراط المستقیم، یہی ہے۔ تو دوستو، کرنا کیا ہے، میں پہلا واضح کر دوں، دشمنی جو کیا چیز ہے۔ دشمن کو آپ عزت بھی اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات سوچ لو، جو انسان پڑھ لکھ کر کوئی بدماش بن گیا، کوئی راجنیتا بن گیا، کوئی کیسا بن گیا، کوئی کیسا بن گیا، کوئی جادوگر بن گیا، عامل بن گیا، پس پردہ یعنی کہ پیچھے رہ کر اوپر سے خوب اچھا اچھا باتیں کریں گے، نیچے سے بہت بری بری کام کریں گے، شیطانی عملیات کے دوارا نقصان کریں گے، یا اوپر سے آپ کے ساتھ اچھا بات کر رہے، پیچھے سے بدماش لگا دیا، اور اوپر سے اچھا بات کر رہے، پیچھے سے اسی کی لڑکا، اسی کی کنبہ کے لوگ آپ کو برباد کر رہے، زمین چھین رہا، بندہ کو مار رہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح کی دشمن سے آپ اگر پریشان ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ پر بندشیں لگاتے ہیں، اس طرح بہت سارے معاملات ہیں۔ تو بہت سارے چیز ایسے ہیں جو بس سارے کھولنے جاؤں، سارے بولنے جاؤں تو بہت بڑا ہو جائے گی ویڈیو، تو اسی لیے میں شارٹ کٹ بولوں گا، آپ کو سمجھنا ہے۔ دشمن کی تعلق سے مکمل 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 علاج یہی ہے، بہت ہی بھینکر عمل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یوں ہی تو اگر سوچا جائے، سورہ کوثر شریف بہت چھوٹا ہے، 30واں پارہ میں ہے، آخری حصہ میں ہے، اور نماز میں بھی بہت مختصر لوگ زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ اور سورہ کوثر شریف رحمت کا سمندر ہے، اور ضرورت پڑنے پر قہر برسائیں گے، ایسا ہے کہ جلالی بھی بہت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو عمل دے رہا ہوں، انشاءاللہ جہاں آپ کا کوئی بس نہیں چلتا، بے بس ہے،
ऐसे दुश्मन से बदला लेने के लिए इस अमल से आप मुकम्मल काम ले सकते हैं। वीडियो को थोड़ा धीरज रख के आप देखें, ठीक है, सुने, अच्छी तरह से समझ लें। तो ऐसे दुश्मन से पार लगाने के लिए, दुश्मन से पार लगने के लिए, दुश्मन से निजात पाने के लिए आपने करना क्या है? चांद की 15 तारीख निकल जाने की बात, जो भी शनिवार मंगलवार आएगा उसमें बेहतर है कि शनिवार मंगलवार महीने के चांद के आखिरी हिस्सा में हो सबसे, तो और बेहतर है। जवाल की समय आपको लिखना है, नक्श को बनाना है। बनाना कैसे, किस मटेरियल पे होगा ये काम, ये आपने अच्छी तरह से ध्यान देना। आपको तीन चार चीज़ चाहिए, वो मैं आपको बोलता हूँ। आपको ईंट की भट्टा में जाना, यानी ब्रिक फील्ड में जाना, वहाँ कच्चा ईंट बना के सूखने को डालता है। सूखा हुआ कच्चा ईंट खरीद के लाना है, अगर आपको दुश्मन को पूरा पार लगाना है तो, ठीक है। कच्चा ईंट खरीद के लाना है, मोल भाव नहीं करना, जो दाम हो चुपचाप पैसा दे के लेके आ जाना है। और लाना कैसे, शॉपर में पैक कर ले, ठीक है। यानी कि खरीदते ही, आपके खरीदने की बात जो है, आपने उसको अंधेरा में पैक कर लेना, काला शॉपर ले ले, उसे पैक कर लेना। लेके आ जाना, एक बाजार से नया चाकू ले लेना, चाकू यानी छुरी खंजर ले लेना, लोहे का हो, नोकदार, जिससे लिखा जाए। और एक काला कपड़ा खरीद लेना, एक काला शॉपर ले लेना, यानी कि बैग ले लेना, काला पिन्नी ले लेना, कोई मोटा सा हैंडबैग टाइप की, काला जैसा भी मिल जाए आपको। और एक नीम की पत्ता ले लेना, बस यही सौदा चाहिए आपको। ला के रख के आपने फिर गुस्ल कर ले, बावज़ू हो जाए। और ज़वाल से पहले, आधा घंटा पहले आपने 2 रकात नमाज कज़ाए हाजत की नीयत से पढ़ ले। और उसके बाद आपने, जैसे जवाल एंट्री हुआ, जवाल की टाइम, जवाल के बारे में आपको अगर मालूम नहीं है, प्ले स्टोर से आपने चौगाड़िया हिसाब ऐप डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको जवाल का टाइम वक्त मालूम पड़ जाएगा, लगभग 11:30 से लेके 12 के बीच में आ जाता है। तो आपने उस समय बैठना है। अब यहाँ पे एक बात और आती है, रिजालुल गायब को ख्याल रखना होता है इस अमल में, अच्छा रहता है, बेहतर रहता है, ठीक है। रिज्जत नहीं होती है और अमल में तासीर ज़्यादा होता है। रिजालुल गायब को मालूम करने के लिए इसी चैनल में वीडियो मिलेगा आपको, रिजालुल गायब का फुल डायरेक्शन नाम से, डिटेल्स नाम से, किताब का प्रिंट के साथ। इससे पहला दिया था, वो लिख के दिया था, उसमें कोने वाली हिसाब नहीं था। तो इसमें आपने देख के उस तारीख को, जिस तारीख को आप काम कर रहे हैं चांद की, उस तारीख को रिजल्ट गायब किस तरफ है, रिजल्ट गायब को पीछे रख के, अगर वो पूरब की तरफ है तो आप पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठेंगे, ठीक है। यानी कि ईस्ट की तरफ है तो वेस्ट की तरफ मुँह करके बैठेंगे, अगर वेस्ट की तरफ है तो ईस्ट की तरफ मुँह करके बैठेंगे। नॉर्थ साउथ सब मतलब जिस तरफ रिजल्ट गायब है उस तरफ पीट करके बैठेंगे, बात खत्म। उसके बाद आपने बैठने की बात, सबसे पहले आपने अपना हिसार करना। हिसार चाहे दुर्द इब्राहिम शरीफ से करे, चाहे आयतल कुर्सी मुबारका से करे, लेकिन तादाद 21 बार होगा। 21 बार पढ़ के आपने शहादत उंगली, दाएं हाथ की शहादत उंगली में दम करके अपनी सिर के ऊपर 3 बार घुमा के, फिर हथेली में दम करके सिर से पांव तक चारों तरफ हाथ को फेर लेंगे, आपका हिसार हो गया। फिर आपने नोकीला छक्कू जो आपने ख़रीद के लाया, उसी से आपने ये बक्सा बनाएंगे। ईंट को पलटी मार के चेक करेंगे, जिस साइड प्लेन है, ईंट ईंट की भट्टा की नाम आम नहीं है, प्लेन है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसी साइड में आपने ये बक्सा बना के अंदर दो दो लकीर खींचेंगे तो 9 खाना बन जाएगी। टॉप में आपने बाहर, बक्सा से बाहर 786 लिख के, फिर आपने एक एक लाइन करके भर देंगे। एक लाइन में 3 खाना है, इसी तरह 3 बार भरेंगे, तीनों खाना 9 खाना भर जाएगी। उसके बाद आपने बक्सा से नीचे आना, नीचे आके आपने लिखना क्या है, सबसे पहले दुश्मन का नाम। दुश्मन की वालदा का नाम मालूम है तो वालदा के नाम लिखेंगे।
दुश्मन मर्द है तो वो दुश्मन का नाम लिख के, बिन लिख के उसके माँ के नाम लिखेंगे, और अगर औरत है तो बिनते लिख के उसके माँ के नाम लिखेंगे। याद रहे, अपना नाम यहाँ कहीं नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात यहाँ रख के अब मैं आपको बताता हूँ। ये दुश्मनी करने वाले लोग जो बार बार दुश्मनी करते हैं, वो उनके पास ईमान का दौलत ख़त्म हो गया होता है। उनको वो जितना हसद करते हैं, जितना दुश्मनी करते हैं, उतना ही उनको मज़ा आता है। बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है, यहाँ जो दुख सह रहे वो बेवकूफ़ नहीं है, वो साबरीन में से है। वो अल्लाह उसके साथ होता है, इन अल्लाह मा साबरीन। अब हसद करने वाला क्या है, हसद कितनी बुरी चीज़ है, माज़तीन पे आप नज़र डालें तो वहाँ पे भी मालूम पड़ जाएगा। अब सूरह फ़तर शरीफ की आयत नंबर 2 को पढ़ कर देखें। सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान कुछ भी नहीं है। मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सब कुछ अल्लाह की इख्तियार में है। जो इंसान या शयातीन, और इंसान शयातीन का बन के जो कर रहे हैं, ये शर कर रहे हैं, ये कुछ वक्त के लिए मज़ा लेते हैं, लेकिन वो अपनी खाता में कितनी गुनाह दर्ज करवा रहे हैं, इसका कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। दुनिया की ये थोड़ा सा हंसी उड़ाना, थोड़ा सा मज़ा लेना, ये तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अपने खाता में से गुनाह जाएगी नहीं। बेशक तौबा की दरवाज़ा खुला है, लेकिन बार बार करते रहोगी, ऐसे थोड़ी होता है। तो आप सोचो। तो वो इसका ईमान है भाई, ठीक है। लकुम दीनुकुम वलिय दिन। और जो सच्चा है, साबरीन में से है, सब्र कर रहे हैं, उसके लिए भी लकुम दीनुकुम वलिय दिन, वो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। सबके लिए यही है। तो बेहतर है आपको सब्र करना चाहिए, अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, और दुआ भी करना चाहिए अल्लाह दुश्मन को भी मौका दे कि वो तौबा कर सके और वो राह रास्त में आ जाए, सिरातल मुस्तकीम पे कायम कर दे, गुनाहों को माफ़ कर दे, शरों से बचने की तौफीक अता फरमा। तो इस तरह दुआ करना चाहिए मोमिन को। लेकिन कुछ है कि ऐसे भी कुछ है कि वो मानते नहीं है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। बेशक शैतान खुला दुश्मन है हमारा। जो शयातीन का हो गया, वो तो खुला दुश्मन है ही है, चाहे वो इंसान के रूप में है, चाहे जिन्नात के रूप में है, ठीक है, चाहे शैतान खुद है। तो ये मामला है। आप सोचो, ऐसे दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए आप हक पर है, उनको बर्बाद करने के लिए झिझकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो शैतान है, शर है, बातिल है वो, उसको बर्बाद करना जायज़ है। लेकिन हक एक बहुत बड़ा चीज़ है, ध्यान रखा करे, हक पर रहे, ठीक है, ना हक किसी पर ऐसे अमल ना करा करे। फिर आपने क्या करना है, आपने लिख लिया, नाम लिख लिया, नाम लिखने के बाद आपने इसको काले कपड़ा में लिपट ली, उसके ऊपर काली शॉपर के अंदर डाल दी। अंधेरा हो गया, अंधेरा में पैक हो गया। इसको आपने लेके जाना है। अगर आपको दुश्मन को खाली सजा देना है तो कब्रिस्तान में जाना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात रह गई है, नक्श लिख ली, सामने रख के आपने सूरह कौसर शरीफ को आपको 100 बार पढ़ के इस पे दम करना है। दुश्मन की चेहरा, दुश्मन की हरकतें आपको दिलो दिमाग में तसव्वुर में रख के फिर पढ़ना है, ठीक है। और जब आपने आखिरी बार अब तर कहेंगे, तब आपने ईंट के ऊपर ऐसे थप्पड़ मारेंगे, ठीक है, दस्तक देंगे एक हाथ से, उल्टे हाथ से, ठीक है, उल्टे हाथ से इस तरह दस्तक देंगे अब तर कह के, दुश्मन को फुल तसव्वुर रख के। ये हो गया आपका अमल पूरा। आपने काला कपड़ा से लिपट लिया, फिर शॉपर के अंदर यानी कि काला पिन्नी के अंदर इसको पैक कर लिया, कपड़ा सहित लिपटा हुआ हालत में। हो सके काला धागा से बांध लो उसको काला कपड़े के ऊपर, फिर शॉपर के अंदर भरो, फिर लिपट लो। फिर आपने चले जाना। दुश्मन को अगर सजा देना, सजा के लिए अगर आपने लिखी है, तो आपने इसको ले जाना कब्रिस्तान में, ले जाके किसी भी पुरानी कब्र में आपने ईंट को
लेटा के गाड़ना है। ठीक है, लेटा के गाड़ने के लिए एक ईंट का हाइट जो है लगभग 4 इंची होता है, 4 से 5 इंची होता है शायद। तो आपको ईंट की ऊपर लगभग 8 इंची मिट्टी आना चाहिए, तो 12 इंची यानी कि 1 फुट मिट्टी खोदना पड़ेगा। लेटा के रख के 4 इंची खा जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 इंची बचेगी, 8 इंची ऊपर मिट्टी आ जाना चाहिए। तो ये बराबर सही हिसाब से दब जाएगी। छोड़ के आ जाना, ये काम करते समय कोई रोके टोके ना, देखे ना, ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। और आपने वज़ू नहीं टूटना ये काम करते समय। घर से वज़ू की हालत में बना के लेके चले आपने, घर तलक आने तक और भी काम है, तब तक भी आपका वज़ू रहना, कायम रहना बहुत ज़रूरी है। आपने किसी को देखा भी नहीं, ये काम अंजाम दे के आ गए। और अगर आपको, हाँ, यहाँ एक बात और आती है, अगर आपको दुश्मन को पूरा पार लगाना है, आपने कच्चा ईंट में लिखा है अमल, आपने किसी नहर, दरिया, समुंदर, बहता पानी वाली में फेंक देना है। ठीक है, उसमें फेंकने के लिए आपने शॉपर हटा देना, कपड़ा के साथ लिपटा हुआ रहे उसी में फेंक दिया आपने। ठीक है, चाहे इसको आपने ऐसे टाइम पे फेंके जो शाम की बात, जो अंधेरा हो जाए ऐसे टाइम पे फेंके, ताकि कपड़ा हटा के नंगा ईंट फेंक दे। ठीक है, नंगा ईंट फेंक देंगे, आपको 3 दिन के अंदर मालूम पड़ जाएगा दुश्मन का क्या हिसाब है। हो सकता है वेंटिलेटर में पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर दोबारा वापस नहीं आएंगे ये। ठीक है, ऐसा हालत हो जाएगी, चले जाएंगे ये, ख़त्म कहानी। तो यूट्यूब की मामला इतनी सारे खुल के नहीं बताया जा सकता, आप समझ लो। आपने इस तरह अमल कर लिया और वहाँ से आपने किसी को बताए बिना और पुशीदा रख के आपने काम करा, किसी से बात नहीं करा, बावजू हालत में वापस आ गए। आने की बाद जहाँ बैठे थे वहीं उसी दिशा में हाथ धोकर बैठना, वज़ू आपका है ही। चाहे वज़ू बना ले ताजी दोबारा, लेकिन वज़ू टूटना नहीं चाहिए था बीच में। वज़ू बना ले इसका मतलब ये नहीं कि वज़ू तोड़ दो, वज़ू रहना चाहिए। फिर आपने आके उसी जगह बैठकर जिस अ, हिसार को पहला किया था, चाहे आयतल कुर्सी मुबारका से, चाहे दुरूद शरीफ से, दुरूद इब्राहिम शरीफ से, जिससे आपने पहला किया था, वही हिसार 21 बार की तादाद में दोबारा करेंगे। इस बार थोड़ा अलग होगा, सब कुछ ऐसा होगा, लेकिन साथ में थोड़ा पानी रखा जाएगा पीने की, उस पानी में भी दम करेंगे, वो पानी को पी जाएंगे। थोड़ा सा पानी चेहरा में मारेंगे, थोड़ा सा पानी सिर में लगाएंगे, फिर वो पानी धीरे धीरे करके सारे पानी पी जाएंगे एक ही बार। यह आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब रही मामला, अगर आपका दुश्मन आमिल है या कोई आमिल के पास जाता है, किसी जादूगर के पास आता जाता है। ठीक है, आपका दुश्मन जादूगर है, आमिल है, या आपका दुश्मन आमिल या जादूगर के पास आता जाता है, तो आपको चाहिए सुबह शाम हिसार, वही हिसार जो आपने शुरू में किया, वही हिसार 40 दिन तक रोज़ाना 2 बार करें। सुबह उठ के फजर की नमाज के बाद, शाम को मगरिब से आधा घंटा पहला करें, या मगरिब की नमाज के बाद करें, फिर सोते समय भी कर ले तो और बेहतर है। तो इस तरह से आपको रिजत नहीं होगी और 100% अमल का फ़ायदा मिलेगा और मुकम्मल दुश्मन से नजात पाएंगे। तो उम्मीद है मैंने अच्छा से समझाया होगा, अच्छा से बताया होगा। वीडियो को पूरा देख के काम को अंजाम दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नाजायज़ हरगिज़ ना करें, जायज़ जगह करें। आप हकवर हो, आप सताए जा रहे, तो ज़रूर करें। आप मज़लूम है तो आप ज़रूर करें। ठीक है, तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।